ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون سن 1999 کو فوت ہوئے، جو گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ وہاں عراق اور پھر فرانس چلے گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوئے ہوتے تھے، جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف اے آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹے کا قیلولہ کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کی سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کے لیے نکل سکے ہیں۔ ان کا دن 9 بجے ختم ہوتا تھا، پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں ان کے خیالات کچھ بھی ہیں۔ خمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے لیے وقف تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک بار ایک ایرانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی ہماری ماں سے پانی کا گلاس لانے کو بھی نہیں کہا۔ ایران میں سن 1979 کے اوائل میں جو افراتفری پھیل گئی تھی، اس کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خونریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو قطعی یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا، جبکہ آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں سن 1962 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے انہیں ملک کا ہیرو بنا دیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، پھر عراق اور پھر فرانس میں رہنے لگے، جہاں قیام کے دوران وہ اپنے حامیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے باہر کریں۔ سن 1979 کے آنے سے قبل شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ ہر طرف فساد پھیل گیا اور روزانہ ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ محمد ہیکل اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رائل گارڈ کی ٹول کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ لوٹ کر واپس آ جاتے۔
शाही तिजोरी को हिफाजती इकदामात के तहत जमीन से 20 मीटर नीचे बनाया गया था। बैंक के एहलकार जो तिजोरी खोलना जानते थे गायब हो गए थे। आखिर शाह की जानिब से शाही खजाने को महफूज रखने के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी वो उनके खिलाफ गईं और उन्हें ईरान से अपने जवाहिरात के बगैर जाना पड़ा। उन जवाहिरात को उस वक्त 500 अरब डॉलर में बीमा कराया गया था। ये खजाना आज भी ईरान के बैंक में महफूज है। शाह ने ईरान से अपनी रवानगी को इस तरह पेश किया कि वो मिस्र के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल वो पहले उर्दन जाना चाहते थे, लेकिन उर्दन के बादशाह ने शाइस्तगी से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाह का वक्त सबसे पहले दरियाए नील पर असवान रिजॉर्ट पहुंचा। वहां भी उन्होंने खुद को हुकूमत के सरबराह के तौर पर पेश किया। वहां उन्होंने मिस्री सदर अनवर सादात के साथ 3 रोजा सरबराही इजलास किया। वहां उन्होंने साबिक अमरीकी सदर जेराल्ड फोर्ड से भी मुलाकात की। मिस्र में 5 दिन गुजारने के बाद शाह 22 जनवरी को मराकश के दारुल हुकूमत के लिए रवाना हो गए। उनका मंसूबा ये था कि वो 5 दिन वहां गुजारेंगे और फिर अमेरिका चले जाएं, लेकिन वहां उन्हें अपने दामाद और अमेरिका में ईरान के सफीर का पैगाम मिला कि अमेरिका ने अपना इरादा बदल लिया है और अब वो उनकी मेजबानी के हक में नहीं है। 3 हफ्ते बाद मराकश के शाह ने अपने एडीसी को ईरान के शाह के पास ये बताने के लिए भेजा कि वो उन्हें अपने मुल्क में सियासी पनाह देने की मुखलिसाना ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और वो चाहकर भी उन्हें अपने पास नहीं रख सकते। जिंदगी के आखिरी दौर में मिस्र ने उन्हें अपने यहाँ आने की इजाजत दे दी। जब शाह 27 जुलाई सन 1980 को कैंसर के बायस फौत हो गए तो उन्हें सरकारी एजाज के साथ वहीं सुपर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब 1 फरवरी सन 1979 की रात 1 बजे चार्टर्ड बोइंग 747 तैयारे जिमेफ्लार ने पेरिस की हवाई अड्डे से तेहरान के लिए परवाज किया। इस पर ईरान के शाह के खिलाफ इंकलाब के हीरो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी सवार थे। 16 साल जिलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले खमीनी अपने वतन वापस आ रहे थे। तैयारे में सवार मुसाफिरों की कुल तादाद 168 थी। इस परवाज में कोई खातून या बच्चा इस खौफ से शामिल नहीं किया गया था कि हवाई जहाज पर हमला हो सकता है। ये खदशा बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं था। कौन कफलन अपनी किताब खमीनीज गोश्त में लिखते हैं, ईरानी फजाइया के सीनियर कमांडर इस तैयारे को मार गिराना चाहते थे जो खमीनी को ईरान लेकर आ रहा था। उन्होंने मिस्र में पनाह गुज़ीन शाह से तैयारे को मार गिराने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन शाह ने इस दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। मारूफ मिस्री सहाफ़ी मोहम्मद हिकल ने अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्लाह में लिखा है कि जहाज में सवार होते ही खमीनी जहाज के ऊपरी हिस्से में गए। उन्होंने पहले वजू किया, नमाज पढ़ी और कुछ दही खाई। उसके बाद उन्होंने तैयारे के फर्श पर तोशक बिछवाई। एयर फ्रांस के 2 कंबल ओढ़कर सोने चले गए। 2.5 घंटे सोने के बाद उन्होंने फिर नमाज पढ़ी और ऑमलेट का नाश्ता किया। तैयारे के पिछले हिस्से में उनके आदमी और तकरीबन 100 सहाफियों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। जैसे ही तैयारा ईरानी फिजाई हदूद में दाखिल हुआ, एबीसी न्यूज के नुमाइंदे पीटर जेनिंग्स ने खमीनी से पूछा, ईरान वापस आते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? आयतुल्लाह का जवाब था, पीची, यानी कुछ भी नहीं। उनके फारसी मुतरजम सादिक गौतमज़ादा ने हैरत से पूछा, पीची? खमीनी ने फिर इकरार किया, हीच एहसासी न दारम, जिसका मतलब है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जॉन सिम्पसन भी इसी तैयारे में सवार थे। बाद अज़ां उन्होंने अपनी सवाने उमरी न्यूज़ फ्राम नो मीन्स लैंड में लिखा, खमीनी के साथ तेहरान जाना एक खौफनाक तजर्बा था। हमारे साथ आने वाले मुसाफिरों को पूरा यकीन था कि ईरानी फजाइया हमारे तैयारे को मार गिराएगी। परवाज के दौरान हमने कुछ लम्हे के लिए खमीनी से बात की थी। वो ज्यादा बोलने वाले शख्स नहीं थे। जब मैं उनसे कोई सवाल पूछता तो वो जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगते। खमीनी के तैयारे ने लैंड करने से पहले 3 बार तेहरान का चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे खमीनी का तैयारा तेहरान की मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही हवाई जहाज का दरवाजा खुला, काली पगड़ी और टखनों तक लंबे पजामे में मलबूस एक कमजोर झुकी हुई कमर वाले बूढ़े ने 16 साल बाद अपने चेहरे पर ठंडी ईरानी हवा का झोंका महसूस किया। उनको एक बाजू से एयर फ्रांस के एक अटेंडेंट ने सहारा दे रखा था। ईरानियों का एक हजूम खमीनी के इस्तकबाल के लिए वहां जमा था।
उन्हें पहले आसमानी नीले रंग की मर्सिडीज कार में बिठाया, लेकिन लोगों का हजूम इतना था कि उन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करना पड़ा। जब तक वो गाड़ी में था, वो उन सड़कों के नाम पूछते रहे जिनसे वो गुजर रहे थे। जब उन्होंने बरसों पहले तेहरान छोड़ा, तो तेहरान और अब के दरमियान बड़ा फर्क था। उनकी आमद तक शाह के दौर के वज़ीर आज़म शाहपुर बख्तियार ने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्हें नजरअंदाज करते हुए खमीनी ने मेहदी बाज़ारगान को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद हैकल लिखते हैं, बख्तियार ने पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया ताकि ये जाहिर हो सके कि वो इक़्तिदार पर काबिज है। जब खमीनी ने ये सुना तो एक कागज निकाला और इस पर फारसी में लिखा कि कर्फ्यू की पैरवी न करें। इस कागज के टुकड़े को हर टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया। उसके फौरन बाद लोग कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। जनरल गराबगी ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म बुजुर्गान को बुलाया और उनसे कहा कि वो अपना नुमाइंदा भेजें ताकि मैं फौज का कंट्रोल उनके हवाले कर सकूं। 11 फरवरी को जनरल गराबगी ने अचानक ऐलान किया कि अब से फौज सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहेगी। उन्होंने तमाम फौजी यूनिटों को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया। उस दिन से ही सड़कों पर इनकलाबियों का कब्जा हो गया। बख्तियार ने अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान किया और रोपोश हो गए। उस दिन के बाद से पुरानी हुकूमत से वाबस्ता फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। डेमिंग्स हार्नी अपनी किताब द प्रीस्ट एंड द किंग में लिखते हैं, 12 फरवरी की रात पहले जनरल नसीरी शाह के खास और उनकी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी सवात के सरबराह नसीरी को मारा पीटा गया और फिर उन्हें जनरल रब्बी नाजी और खोलदराज के साथ 15 फरवरी की रात एक स्कूल की छत पर गोली मार दी गई। एक हफ्ता कबल ही खमीनी ने इस स्कूल को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। खमीनी ने सादिक खलीली को मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया। उसने खलीली को हिदायत की कि उन लोगों की बातों को सुने और उसके बाद उन सबको जहन्नम वासिल कर दें। फ्रांस में आयतुल्लाह खमीनी ने भले ही ईरान में जमहूरियत की वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन ईरानी सरजमीन पर कदम रखते ही उनकी तमाम तवज्जो ईरान में एक बुनियाद परस्त इस्लामी रियासत के क़याम पर मरकूज थी। कॉन्टिसलन लिखते हैं, इन जनरलों को आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूल की छत पर ले जाया गया, जहां उन्हें एक एक करके गोली मार दी गई। जब खमीनी को उनकी मौत की खबर मिली तो वो लाशों को देखने के लिए खुद तंग सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए और 1 मिनट तक वहां रहे। उसके बाद उन लाशों की फिल्म बनाकर ईरानी टेलीविजन पर दिखाया गया। उसे ये पैगाम देना था कि आयतुल्लाह खमीनी की इस्लामी इंसाफ की रिवायत अब ईरान की सरजमीन पर अपनी जड़ें जमाने जा रही है। इस वाक़े के चंद दिन बाद तेहरान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने तबसरा करते हुए कहा कि मैं समझता था कि खमीनी ईरान में जमहूरियत ला रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने एक आमिर की जगह दूसरे आमिर को ला खड़ा किया है। सन 1999 में खमीनी ने सैटनिक वर्सेस के मुसन्निफ सलमान रुश्दी और उसकी किताब की अशात से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो रुश्दी को देखते ही कत्ल कर दें। ऐलान किया गया कि जो शख्स रुश्दी को कत्ल करेगा उसे $26 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे की वजह से रुश्दी को अपनी बाकी जिंदगी सख्त सिक्योरिटी में गुजारना पड़ी। 3 जून सन 1999 को खमीनी की मौत हुई तो तेहरान के रेडियो के प्रेजेंटेटर ने रोते हुए उसका ऐलान किया। मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। तमाम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और ईरान की सरहदें सील कर दी गईं। उस वक्त ईरान के सदर रफ़संजानी को लगा कि खमीनी के इस दुनिया से चले जाने से ईरान में इस्तेहकाम आएगा। खमीनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। उनकी मैयत को एयर कंडीशन्ड बॉक्स में रखा गया ताकि लोग उनके आखिरी दीदार को कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक खमीनी के जनाजे में तकरीबन 20 लाख अफराद ने शिरकत की। उस वक्त हजूम इतना ज्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करनी पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश न हो जाएं। बिलाखिर उनकी मैयत को हजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, हजूम ने आगे बढ़कर खमीनी की लाश को कब्जे में ले लिया। लोगों में उनके सफेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो उसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें।
ایرانی میڈیا نے بتایا کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑی۔